प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री के पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 16 करेंगे। ग्रुप नंबर 16 में एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और इनमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP4। सेकंड प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई। ग्रुप 16 को हम ग्रुप 15 से कंपेयर करेंगे। Atomic radii of group 16 elements is smaller than group 15 elements. This is because on moving from left to right in a period, nuclear charge increases and atomic radii decreases. But on moving down the group 16 elements, atomic radii increases. This is because number of shells increases. ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स is less than that of group 15 elements. This is because of completely half-filled stable p orbital in group 15 elements. But on moving down the group 16 elements, ionization enthalpy decreases because size of atoms increases and attraction of electrons towards the nucleus decreases. Third property, melting and boiling point. The melting and boiling points of group 16 elements are lower than that of group 15 elements. This is because of smaller size of atoms and weak forces of attraction of group 16 elements. But on moving down the group 16 elements, the size of atoms increases and magnitude of van der Waals forces also increases. Due to this, melting and boiling points increases. Next property है electronegativity value. The electronegativity value of group 16 elements is greater than group 15 elements. This is because of small size of atoms and greater attraction of electrons towards the nucleus. But on moving down the group, the electronegativity value decreases due to increase in size of atom and decrease in attraction of electrons towards the nucleus. Next property, metallic and non-metallic character. Group 16 elements are less metallic as compared to group 15 elements. Reason क्या है इसका? This is due to high electronegativity value of group 16 elements, but on moving down the group, the metallic character increases due to decrease in ionization enthalpy. It means oxygen and sulfur are non-metal, selenium, tellurium, metalloid, polonium is a metal. Next property है electron gain enthalpy value. ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में आता है कई बार। ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज़ एज कंपेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट्स। दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ एटम्स। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप 16 एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू बिकम लेस नेगेटिव. This is because of size of atoms increases and attraction of electron towards the nucleus decreases. तो इसका मीनिंग क्या हुआ?
oxygen must have highly negative electron gain enthalpy value, but it is not so. Oxygen has unexpectedly less negative electron gain enthalpy value as compared to sulfur. Reason क्या है इसका? This is because of small size and greater interelectronic repulsion in the p orbital of oxygen atom. It does not feel any attraction towards the incoming electron. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन. कैटिनेशन क्या है? पहले भी किया था अपने ग्रुप 15 में. दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स इज कॉल्ड कैटिनेशन. इन ग्रुप 16 सल्फर हैज़ हाईएस्ट टेंडेंसी to show catenation. Oxygen can also show catenation to limited extent, whereas other elements do not show catenation. Next property, allotropy. When a chemical element exists in two or more than two different forms having same chemical properties but different physical properties are called allotropes, and the phenomena is called allotropy. Oxygen exists as O2 and O3. Sulfur also exists in number of allotropic forms, out of which yellow orthorhombic sulfur, alpha and beta monoclinic sulfur are main forms of allotropic form of sulfur. इसके बाद एक क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज अ गैस बट सल्फर इज अ सॉलिड, गिव रीज़न. ऑक्सीजन गैस क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में वीक वंडरवाल फोर्सेस से जुड़े होते हैं और ये ड्यूरिंग कोलिजन ये फोर्सेस आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. पर सल्फ़र ऐसे 8 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. इसमें सल्फ़र एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. दैट्स वाई सल्फ़र एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट. ग्रुप 16 एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 Np6. तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में ग्रुप 16 के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. फर्स्ट है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. जनरली सी NS2 Np6 है, Np4 सॉरी. तो इस एलिमेंट्स को ये एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल EC एक्वायर कर लेते हैं. जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये शो करेंगे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इट मीन्स ग्रुप 16 एलिमेंट्स शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स. सेकेंड है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव 2 electrons in the p orbital which are unpaired. Therefore, after losing 2 electrons, they show +2 oxidation state in their compounds. Oxygen show +2 oxidation state, whereas other elements can also show +4 and +6 oxidation states in their compound. इसका रीज़न क्या है? ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है और ये अपना इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में शिफ्ट कर सकते हैं, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर सकते हैं. इसलिए ये +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. ऑक्सीजन शो ओनली +2 ऑक्सीजन स्टेट, वेयर एज सल्फर एंड अदर एलिमेंट्स शो +4 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आल्सो. इसके बाद है
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप H2E। एग्जाम्पल है H2O, H2S, H2TE, H2SE, that is water, hydrogen sulfide, tellurium hydride and selenium hydride। जो हाइड्राइड बने आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर। ग्रुप 16 के जो हाइड्राइड हैं इनमें sp3 हाइब्रिडेशन होती है और वी शेप होती है इनकी। वी शेप, बेंट शेप भी कह सकते हैं, एंगुलर शेप भी कह सकते हैं। वाटर इसका एग्जांपल है। एक वाटर की शेप वी शेप है, बॉन्ड एंगल 104.5 है। इसी तरह से सभी हाइड्राइड एंगुलर शेप के हैं, वी शेप के हैं, sp3 हाइब्रिडेशन है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी बॉन्ड एंगल। जैसे हम वाटर से टेलुरियम सेलेनियम हाइड्राइड की तरफ मूव करेंगे इनके बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं। रीज़न क्या है? ऑन मूविंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेलुरियम साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस। इससे क्या होगा? द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम ऑन मूविंग फ्रॉम वाटर टू टेलुरियम हाइड्राइड। इसकी वजह से क्या होगा? रिपल्शन बिटवीन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। जब रिपल्शन डिक्रीज होगी बॉन्ड कम क्लोज टू ईच अदर एंड बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5, H2S का 92.1, H2SC का 91, H2TE का 90। तो बॉन्ड एंगल क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिडिक करैक्टर। जितने भी हाइड्राइड हैं ग्रुप 16 के ये सभी वीक एसिड्स हैं। रीज़न क्या है? They have a tendency to release hydrogen ion in aqueous solution and SD character increases from water to tellurium hydride. This is because bond length of He bond increases and bond strength decreases. इसकी वजह से क्या होगा? हाइड्रोजन आयन आसानी से रिलीज करेंगे ये। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक H2TE और सबसे कम वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वोलेटिलिटी। ग्रुप 16 एलिमेंट्स वोलेटाइल नेचर के हैं। देयर वोलेटाइल करैक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम वाटर टू H2S। मीन्स H2S का वोलेटाइल करैक्टर ज़्यादा है, वाटर का कम है। एंड देन डिक्रीजेज। रीज़न? वाटर शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग between their molecules whereas other hydrides do not show hydrogen bonding. On moving from H2S to H2TE the size of atoms increases and intermolecular forces also increases. Due to this boiling point increases and volatile character decreases from H2S to H2TE. Next property है thermal stability। Thermal stability of group 16 elements decreases from water to tellurium hydride. Reason क्या है? It depends upon bond length of He bond. As the bond length increases, bond strength decreases and less amount of energy is required to break the bond. Hence, thermal stability decreases. H2TE is the least stable, H2O means water is the most stable. Next property है reducing character। reducing character thermal stability के inversely proportional है। As the thermal stability decreases from top to bottom, from water to H2TE,
It means reducing character increases from water to tellurium hydride. It means tellurium hydride is the strongest reducing agent and water is the weakest reducing agent. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट ये हाइड्राइड की प्रॉपर्टी थी. इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी सेकंड है ग्रुप 16 की, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप EO2 एंड EO3 मीन्स डाइऑक्साइड्स एंड ट्राइऑक्साइड्स. इसके बाद इनके स्ट्रक्चर्स हैं. पहला स्ट्रक्चर है सल्फर डाइऑक्साइड का. इसका एंगुलर शेप है sp3 हाइब्रिडेशन है. इसी तरह से सेलेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड है. इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है. इसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है. इसकी भी sp3 हाइब्रिडेशन है पर इसकी शेप है ट्रायगोनल प्लेनर. इसी तरह से गैस फेस में सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है. ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर भी है सल्फर ट्राइऑक्साइड का. इसके बाद सेलेनियम ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है. ये भी sp3 हाइब्रिडेशन है. बॉन्ड एंगल 120 है. इसमें ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका. और इसी का गैस फेस में स्ट्रक्चर है टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर. इसके बाद थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है ग्रुप 16 की, रिएक्शन विद हेलोजेंस. Group 16 elements on reaction with halogens form halides of the type EX2, EX4 and EX6. 3 टाइप के halides हैं, डाईहैलाइड, टेट्राहैलाइड एंड हेक्साहैलाइड्स. अब इनके स्ट्रक्चर हैं कुछ. पहला स्ट्रक्चर है SCl2 का, सल्फर डाइक्लोराइड. इसका स्ट्रक्चर वी शेप का है, एंगुलर शेप का है जैसे वाटर की शेप थी. बॉन्ड एंगल 103 है और हाइब्रिडेशन sp3. इसी तरह से SF4 का स्ट्रक्चर है. इसमें है sp3d हाइब्रिडेशन और शेप है ट्रायगोनल C ज्योमेट्री. बॉन्ड एंगल 173. इसी तरह से SF6 का स्ट्रक्चर है. इसमें हाइब्रिडेशन है sp3d2. ऑक्टाहेड्रल शेप है इसकी और बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री. ये था ग्रुप 16. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे हम डाइऑक्सीजन. इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस करेंगे कल. थैंक यू. शेयर का छोड़ देखो ये करियो क्लिक भेजिए.